If you go on stage and be like, I'm awesome, audience will like, "Jao fir." Like, can you be funny? Like, nobody cares about how rich you are, how successful you are, how cool you are. क्योंकि आपका 30% ऑडियंस आपका लॉयल ऑडियंस होता है और 70% ऑडियंस वो वाला होता है कि चल देखते हैं. Correct. ठीक है. So your first 5 minutes is just fighting them. Yeah. कि अरे देखो भाई, हाँ उनका पहला 2 मिनट तो इतना भी क्या खास है, उसी में उसी में जाता है उनका पहला 2-3 मिनट तो. एक टाइम बॉम्ब की तरह चलता है जब आप स्टेज पे जा रहे होते हो कि जो पिछला कमेडियन परफॉर्म कर रहा है वो अपने हाई पे छोड़ के जाएगा, तो उसे टक 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 बन रहा है, फिर आपका नाम लेता है जाकिर खान, अभी चल रहा टिकर, ये खत्म नहीं हुआ है. आप स्टेज पे गए, आपने माइक उठाया और वो कर रहे हैं हल्ला, फिर आप जब एक लाइन बोलते हो और वो लाफ आता है ना, तब फटता है. ऑलराइट, हमारे साथ में है कॉमिकिस्तान के बहुत ही महारथी केनी सेबेस्टियन, सुमुखी, नीति पाल्टा एंड जाकिर खान. नीति, व्हाट डू यू थिंक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड राइटिंग फॉर कॉमेडी? Okay, so I have seen talent, pure performance. वो एक एवरेज थॉट को भी लिफ्ट कर लेते हैं जस्ट बाय द परफॉर्मेंस, द पावर ऑफ परफॉर्मेंस. बट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ राइटिंग बैकग्राउंड, आई ऑलवेज लुक एट द क्राफ्ट ऑफ द जोक फर्स्ट. राइट. सो जैसे अब सुमुखी का है, शी कैन टेक अ थॉट एंड मेक इट सो फनी विद हर परफॉर्मेंस, बट देयर विल आल्सो बी क्राफ्ट इन द राइटिंग. इट्स नॉट जस्ट लाइक केनी के तो डीप थॉट्स कहाँ से आते हैं, वो स्ट्रेट फेस के साथ डिलीवर कर रहा हो, आप हंसना रुक नहीं सकते. जाकिर जोक्स नहीं सुनाते, जाकिर लाइफ के पूरा फंडा सुना देता है. दैट डेप्थ कम्स डिफरेंटली. So when you ask me about craft of writing, each one has a different strength. So, you know, for me, it's the backbone of your joke. Okay, what is your craft? Oh, my craft would be trying to do everything. I think as she said, I heavily rely on the fact that I love performing. Stage हो या फिर acting हो या कहीं भी opportunity मिल जाए मैं तो चली जाती हूँ. So I think my biggest actually craft would be the hustle, and hopefully that gets added with whatever little talent I have. So yeah. Whatever little talent you have, okay. Yeah. Very humble. Too humble. मोहल्ले में मार पड़ने वाली है. So what is the importance of, like, say humility maybe for any comic artist? That's what I mean. You can't survive if you're not humble in comedy. If you go on stage and be like, I'm awesome, audience will like, "Jao fir." Like, can you be funny? Like, nobody cares about how rich you are, how successful you are, how cool you are. If you don't have a point, you don't have a unique observation or something insightful, or just add something to people's life, then just get out of stage. So you can't afford to be arrogant. The moment you start getting arrogant, you've stopped being a comedian, you become a performer. So that's what I feel like with stand-up. I think a lot of artists get frustrated not because they're not funny anymore, it's just they've stopped focusing on writing. So Right. You're actually as good as your last show, joke. I think. Yeah. It's more like sports. It's very similar to. Yeah, it's very brutal. Yeah. Think about it, the bigger you are, the harder you fall. आप गए हो, आप ठीक है, आप बहुत फेमस हो गए एंड ऑल दैट, आपका शो बड़ा अच्छा जा रहा है, आपकी ऑडियंस आ रही है, आपने एक और शो किया और उसमें बोले यार इसकी टिकट लेके गए पर कुछ मजा नहीं आया. इसी तो टीवी पे जितना बड़ा नाम उतना ज्यादा फॉल आपका होता है. Like people constantly want to say that you are not that funny. And you are constantly fighting their perception. Yeah. क्योंकि आपका 30% ऑडियंस आपका लॉयल ऑडियंस होता है और 70% ऑडियंस वो वाला होता है कि चल देखते हैं. Correct. ठीक है. So your first 5 minutes is just fighting them. Yeah. कि अरे देखो भाई, हाँ उनका पहला 2 मिनट तो इतना भी क्या खास है, उसी में जाता है उनका पहला 2-3 मिनट तो. उसके बाद वो जब कहानी बढ़ती है आगे, वो शो में आ जाते हैं और उसके बाद जो उनको फील होता है वो होता है, वो तो वही जानते हैं. पर हाँ, वो दिख रहा होता है स्टेज से ना, इतना खूबसूरत है वो जगह जहाँ आप खड़े होते हो. वाकई में आपको एक एक बंदे का मूवमेंट आपको ट्रेस होता है कि कौन खासा, कौन मुड़ के देखा. इसलिए ऑब्जर्वेशन ना, मतलब मैं ऐसे मजाक में अपने भाइयों को बोलता हूँ यहाँ आँख लगी मेरे यहाँ, क्योंकि स्टेज पे बचपन से, मैं 9 साल की उम्र से स्टेज कर रहा हूँ साहब, मैं सितार बजाता था. जी. ठीक है, मैं तब से स्टेज पे हूँ. ठीक है, तो वो नज़र इतने दिन का रियाज है उसका. ठीक है, कि वहाँ कोने में कोई प्लास्टिक की पन्नी से अपना इधर थैला इधर का इधर रख रहा है, वो भी दिखता है आपका. कोई खांस रहा है तो भी इधर दिख रहा है. जैसे एक बार हक से सिंगल के ना शो टेपिंग में I saw a father and a son sitting together. ठीक है, अब वो ना पापा हंस रहे ना बेटा हंस रहा है.
ठीक है, क्योंकि ऑकवर्ड हो रहा है वो, और वो शो है ही पूरा रिलेशनशिप के बारे में, ये सब वो सब। तो मैंने उनको सीट चेंज कराई उन दोनों की बीच शो में किसी, और ना मैंने वो एड्रेस किया कि ये दोनों फादर सन हैं इसीलिए हंस नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा 1 मिनट, ये 4 लोग आप इधर आ जाएंगे, आप इस सोफा में, यार ठीक है। और लड़का बड़ा खुश हुआ कि चलो आप कम से कम शो तो एंजॉय करें। अब वो 40वीं रो में है वो स्टेडियम के शो में, ठीक है, पर वो आपकी नजर है स्टेज से ना, वो आपको दिखता है, तो वो मेरे ख्याल से वो बहुत मदद करता है आपको जहाँ भी आप पहुंचे उसमें, वो ऑब्जर्व, वो हर दिन का जलना उसमें। मैंने इनके आशा भोसले जी का मैंने एक इंटरव्यू किया था, जी। तो उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही कि उसमें जब वो कोई भी गाना गाने के लिए जाती हैं तो स्टूडियो में जब वो जा रही होती है तो उसको वो अपना पहला गाना मानती हैं, दैट दिस इज़ माई फर्स्ट सॉन्ग एवर। और उनमें वही एक सेम लेवल ऑफ एक इनसिक्योरिटी होती है, वो नर्वस होती हैं कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, रियाज़ करती हैं, स्टूडियो के जाने के टाइम पर गाड़ी में लिरिसिस्ट से बात करती हैं, वहाँ पहुँच कर रिकॉर्डिस्ट से बात करती हैं, म्यूजिक डायरेक्टर से बात करती हैं, और इवन जब गाना रिकॉर्ड करने वाली होती हैं तो भी उनके पास सवाल होते हैं वेरियस लोगों के लिए। यही मे बी आई थिंक रीज़न है कि अभी वो शानमुखनंदा हॉल में उन्होंने साइन में शी परफॉर्म, आई थिंक शी इज़ 87 और 88, इट वाज अ पैक्ड क्राउड मे बी। तो क्या आप लोगों में कुछ उस तरीके का एक इनसिक्योरिटी होती है? खूबसूरत बात है, बिकॉज़ हर इंसान को इस तरह की तैयारी पे होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वाकई में बहुत सुंदर बात है, और ये हम मेरे साथ तो आई थिंक मेरे ख्याल दुनिया में कोई आर्टिस्ट नहीं होगा कि जो कि 88 साल की उम्र पे स्टेडियम भर सके। होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, होंगे। ऐसा बहुत ज्यादा ये क्लेम है बड़ा दुनिया के हिसाब से। Right. ठीक है। हाँ, But I अलग-अलग think तरह maybe- के। maybe हमारे बहुत- देश में नहीं होंगे। हाँ। और अब नहीं, लेकिन और उस दुनिया के level किसी भी पे- आर्टिस्ट का क्या होता है, हम उसमें आशा जी का क्रेडिट क्यों वापस लें? जो उनको मिल रहा है वो अल्लाह ने उनको नवाजा है। Right. पर मेरे साथ जो उतना है मैं अपना बता सकता हूँ, वो ये कि मैं जब एक टाइम बॉम्ब की तरह चलता है जब आप स्टेज पे जा रहे होते हो, कि जो Right. पिछला कॉमेडियन परफॉर्म कर रहा है वो अपने हाई पे छोड़ के जाएगा, तो उसे टक 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 बन रहा, फिर आपका नाम लेता है जाकिर खान, अभी चल रहा टिकर, ये खत्म नहीं हुआ है। हाँ, आप स्टेज पे गए, हाँ, आपने माइक उठाया और वो कर रहे हैं हल्ला, right. फिर आप जब एक लाइन बोलते हो और वो लाफ आता है ना, तब फटता है। जब तक वो सेटल नहीं होता है ना, तब तक तो भाई साहब पहला शो और 100वां शो और करोड़वां शो फर्क ही नहीं पड़ता है। आप उतने ही वो मुझे सबसे सुंदर कॉमस्थान में भी मैं ये बात ऑब्जर्व करता था, मुझे ना मेरा सबसे खूबसूरत मेरी ग़िज़ा रूह की जो है ना, वो है किसी परफॉर्मर को आते हुए देखना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बिजी है उस वक्त। कि मेरे दादा के बारे में ये कहा जाता था, हमारे दादा उस्ताद मुदन खान साहब, उनके बारे में जी। कहा जाता था कि वो तो घर में अक्सर हम उनकी बुराई करते थे कि वो स्टेज पे चढ़ते हुए भी उनका राग डिसाइडेड नहीं रहता है कि कौन सा बजाएंगे, कि यमन बजाएंगे कि क्या बजाएंगे, चारुकेसी बजाएंगे या भैरवी बजाएंगे। वो स्टेज पे चढ़ते वक्त सोच रहे होते थे कि भाई पहले से सोच लो, मतलब जो बाकी शागिर्द हैं, पापा वगैरह हमारे कहते हैं कि पहले से सोच लो यार, इतना क्या लास्ट मिनट तक सोच रहे थे। अब जब मैं स्टेज पे चढ़ रहा होता हूँ तो मेरा खुद डिसाइडेड नहीं रहता कि कौन सा शो करूँगा, कौन सा जोक करूँ, कौन सा नहीं करूँ, क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। तो मुझे उनकी कैफियत जो है, जो बचपन में सारी जिंदगी हमारे खानदानी तौर पर हम हमारे दादा से चिढ़ते थे, वो आज उन समझ में आती। हाँ। तो वो बात है, तो मेरे ख्याल से वो तो सबके लिए लागू है। अच्छा, नहीं, टेकिंग ऑन फ्रॉम दिस, क्या ऐसा होता है कि जब आप स्टेज पे जा रही हैं और आपने आपका मतलब तय है कि मुझे जोक्स मुझे कहने हैं, या फिर आप क्राउड को देखकर यू डिसाइड? वो बदलता है। वो एक्चुअली दैट्स वेयर एक्सपीरियंस कम्स इन। आप स्टेज पे चढ़ रहे हैं, जैसे जाकिर ने कहा, मैंने सोच लिया कि अच्छा ये मेरी ओपनिंग लाइन होगी, बिकॉज हर कॉमेडियन के लिए वो ओपनिंग लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो पहली लाफ आती है उसी से आपका पहला कॉन्फिडेंस का बूस्ट आता है। करेक्ट। लेकिन आप चल रहे हो, डिपेंड्स ऑन आपके पिछले कॉमेडियन ने किस लाइन पे एंड किया, किस थॉट पे एंड किया। क्या पता आपने बैक स्टेज से कुछ देख लिया ऑडियंस में, उस टाइम पे आप चलते चलते जब आ रहे होगे, दिमाग में चल रहा होगा कि अब क्या बोलूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो लॉक करके आए हो वही करोगे। जब आप जोक्स कर भी रहे हो, स्पेशली अगर ज़्यादा लंबा शो है, एटलीस्ट मेरे साथ तो ये हुआ है कि अगर मेरे को पता है कि अच्छा चलो इस डायरेक्शन में नहीं कंफर्टेबल हो रहे, तो आप स्विच करके किसी और डायरेक्शन में जाओगे। मैं जाती हूँ क्योंकि मेरे ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी है, तो आई कैन टॉक अबाउट वट एवर आई एम ऑब्जर्विंग, वट एवर आई एम गोइंग थ्रू, बट वो चेंज होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्रिप्टेड ही जाएगा। करेक्ट। एंड आप कह रहे थे ना, जैसे कि somebody had asked me कि कितने शोज लगते हैं टू स्टॉप बीइंग नर्वस। आई एम लाइक, जिस दिन वो पेट की बटरफ्लाइज मर जाएंगी, मैं स्टेज नहीं चढ़ूंगी, बिकॉज दैट एड्रेनलिन पुश is what will make you a better artist. So I don't think we get better at like, of course we get better at stagecraft, but we also get better at faking कि हम nervous नहीं हैं, हम सारे nervous होते हैं।
Amazing. I think any big artist will be nervous, and that's a very positive sign. Okay, mental strength कितनी important है एक comic artist के लिए? Because you know it's you're supposed to make people laugh. It's a live audience. There may be a snide remark from anyone, and it can just completely put you off. You can forget everything. Yeah. Oh yeah. So how important is to enjoy that moment and to be mentally prepared for anything that may be thrown at you? I mean, yes, I definitely important. In fact, I think comics के साथ क्या हो जाता है कि the snide remark becomes part of your joke then. Like, I think the biggest thing that a lot of comics do, जो improv की वो rule होती है कि yes and, कि अगर आपने मुझे insult कर दिया है, मैंने accept कर लिया है, अब मैं ये बताना चाहती हूँ आपको. So if I'm going to avoid it and move away, it's not going to work out, क्योंकि सबने सुन लिया है. एंड सब लोग वेट कर रहे हैं कि आप रिएक्ट करें उस पर, और आपको करना तो पड़ेगा, या तो उस वक्त या फिर कुछ वक्त बाद, बट यू हैव टू रिएक्ट सो दैट, बिकॉज स्टैंड अप इज दैट इंटरैक्टिव यू नो अ क्राफ्ट की आपको हर चीज़ यहाँ पे हो रही है उसके लिए रिएक्शन तो देना ही पड़ेगा, एंड विच ऑल्सो डायरेक्टली अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ, राइट? क्योंकि अगर आप उसे अवॉइड कर रहे हैं, इट्स लाइक वेरी क्लासिक, यू अवॉइड थिंग्स एंड यू मूव ऑन, इट कैचेज अप लेटर. सो आई थिंक वी आर क्वाइट इमोशनल दैट वे, क्योंकि हम अगर शो या तो शो पे या शो के बाद तो रिएक्ट कर ही देते हैं उस पर. सो उसकी भड़ास तभी खत्म हो तभी बेहतर है, अदरवाइज इट जस्ट स्टेज, इट कैचेज अप, और किसी और शो में जब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तब निकल आएगी, और तब फिर अच्छा नहीं जाएगा. सो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट. Okay, and what is the importance of laughing at yourself? Oh, that's what stand-up. It's a cornerstone. Yeah. No, she was talking about with someone. Yeah, you said, no, snide remark. I think for me, stand-up is just honesty. And I don't mean that everything you say is true. It's just that you can't be a liar on stage. Where you can't create your own reality. Stand-up is, you acknowledge reality. You can't, it's like, you know, so fine, you've left your house, you've come here and I'm going to make you face reality in my own way. So if someone makes a snide remark, you have to address it. And you make it part of the act, and if you try to do something that's not honest, the audience can also pick it up ki, oh, then I'll just go watch a film. I'm here for raw honesty. And you were talking about mental health and being strong. It's a very bizarre thing where comics go and talk about who they are, their vulnerabilities, and you have to be strong. Like, you are an insane person to go be like, I'm scared of this, I'm scared of my parents dying. And then the audience be like, and then you can't be like, I'm sharing, why you you not only have to go be vulnerable, you have to overcome what you're talking about and be ready for someone to ridicule that. So it's the perfect definition of not literal honesty, but it's the only art form where you can't be fake. Like, the audience will smell it in a second, and it's involuntary, you know, like when you laugh at a joke, the laugh came first and then you think about why you laughed. And that can only come from when you trigger weak points and strong points, and that can only come from self-discovery. So that's your question was very nice, that I think mental, you have to have a full control over it. And that's why I think also a lot of comics have turbulent lives. Chuma unnecessarily we're poking through our lives and just giving it to the audience, and the audience is just eating it up. So it'll come back to home. Makes sense.